Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start your chapter number 3. The name of this chapter is Animals World. Okay, in our previous chapter number 2, we have seen the plant world. Now in our chapter number 3, we are going to see about plant world. Okay, in this chapter, my dear student, we are going to discuss about the animals, where they used to live, okay, and what foods they used to eat, what are their feeding habits, okay, and as well as in this chapter, we are also going to see about the insects. So you all are excited. Come with me and let's explore the chapter. Like people and plants, animals are also living things. They need food, water and air to live. There are many kinds of animals in the world. My dear students, just like us human beings, just like plants, animals are also called as living beings. Okay, they need food, they need water to breathe, they need water to drink, and they need air to breathe for their living. Okay, there are different species of animals are available in this planet Earth, and they all are present in different shapes and different sizes. Like whales and elephants are very large, tiger, foxes and dogs are smaller, butterflies and ants are very small. So you can see all this type of animals are comes under different shapes and sizes. Okay, now keep in mind, blue whale is the largest animal in the world. Yes, my dear student, this is the important point. You have to keep in your mind that blue whale is the largest animal. Yes, if anyone asks you who is the largest animal on this planet Earth, you are going to tell them that blue whale is the largest animal in the world. Okay, so this is the point which we are going to see. Now, there are some animals which live close to us. They are called domestic animals. They give us milk and food. We use them to ride and carry our things. ऐसे बहुत से animals होते हैं my dear students जो हमारे साथ रहते हैं. उनसे हमें दूध मिलते हैं, ठीक है, उनसे हमें खाना भी मिलता है, ठीक है, और कुछ उन एनिमल्स पे हम राइड भी कर सकते हैं. तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. ठीक है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू नेम सम डोमेस्टिक एनिमल्स. तो आपको कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम लिखना है. तो चलिए 2-3 मैं लिख देती हूँ, बाकी आप करेंगे. ठीक है, तो आ जाओ लिखते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहला हमारा डोमेस्टिक एनिमल कौन है जो सबसे ज्यादा कहा जाता है फेथफुल है एनिमल्स के लिए? डॉग. ठीक है. फिर है कैट. ठीक है. फिर आता है, अच्छा, किससे हमें मिल्क और फूड मिलता है? वो मिलता है हमें गोट से, काऊ से. ठीक है, COW. बाकी के 4 आप कंप्लीट करेंगे. ठीक है. नाउ some animals can only be seen in the forest. They are called wild animals. Sometimes we can see wild animals in the zoo. Wild animals are dangerous to us. जिस तरीके से ये हमारे डॉग, कैट, गोट, काऊ, हॉर्स, ये सारे के सारे हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं जो हमारे साथ रह सकते हैं. ठीक है, जिनसे हमें खाना भी मिलता है, जिनसे हमें दूध पीने को मिलता है. लेकिन वही कुछ अलग एनिमल्स भी इस प्लैनेट अर्थ पे हैं. जैसे वो एनिमल्स ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं. ठीक है, इसीलिए वो लोग फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं. और जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स. कभी कभी उनमें से कुछ एनिमल्स को आप लोग जू में भी देख सकते हो. ठीक है. नाउ नेम सम वाइल्ड एनिमल्स. तो ऐसे ही ना कुछ वाइल्ड एनिमल्स का नाम आप लोगों को लिखना है. तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं. तो सबसे पहला कौन सा वाइल्ड एनिमल है? हु इज कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल? लायन. So here you are going to write lion. Then who is our national animal? Royal Bengal tiger. So here you are going to write tiger. अच्छा, अब zebra भी आपका कहलाता है एक wild animal. ठीक है. फिर है elephant. ठीक है. इस तरीके से बाकी के जो आपके एनिमल्स का नाम है आप यहाँ पे उनको लिखेंगे. There are also some small animals that live near us. इसके अलावा ऐसे बहुत से छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, जैसे कि squirrels, rats, crows, ants, butterfly, mosquitoes. यही छोटे एनिमल्स हैं जो हमारे पास रहते हैं. ठीक है. They live in or around our house. ये कहाँ रहते हैं? ये हमारे आसपास या हमारे घरों के पास रहते हैं. But all of them are small animal. पर ये सारे के सारे क्या हैं? बहुत ही छोटे एनिमल्स हैं. Keep in mind, my dear student, this point you have to keep in your mind. Animals cannot prepare their own food. They depend on plants and other animals for their food. देखिए,
प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हम ह्यूमन बींग्स भी अपना खाना बना सकते हैं खुद से, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ना ये अपना खाना नहीं बना सकते, या तो वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे या तो वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अब देखो, प्लांट्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो जो एनिमल लैंड पे रहते हैं उन्हें हम लैंड एनिमल्स कहते हैं, ठीक है, मतलब वो लोग जमीन पे रहते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट लिव इन जंगल्स आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, और जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं यानी फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्री आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स, ठीक है, बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पेड़ों के ऊपर रहते हैं, ठीक है, उनको हम आर्बोरियल एनिमल कहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, तो जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन बोथ वाटर एज वेल एज ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस, और बहुत से ऐसे एनिमल्स हमारे प्लैनेट अर्थ पे हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, इन्हें हम एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो हियर यू कैन सी द एग्जांपल्स ऑफ land animal or some land animal and our domestic animal, that is dog, lion, land animal and wild animal, monkey, arboreal animal, okay, क्योंकि ये पेड़ों पर रहते हैं। फिश, ये कौन है, ये फिशेस जो हमारी होती हैं ये हमारी एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल, crocodiles are amphibians because they can live on both water and land area, okay। Now we are going to see the next topic of this chapter, that is the feeding habits of animals, ठीक है। तो animals के कौन कौन से feeding habits होते हैं, आ जाओ देखते हैं। Okay, so carnivorous animals have different feeding habits. Carnivorous animals hunt for their food. जो carnivorous animals होते हैं जो बेसिकली जंगल में रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, मतलब वो दूसरे जानवरों को खाते हैं as their food. Herbivorous animals are also called cud chewing animal. While feeding, they quickly swallow their food. Later on, they bring back the food into their mouth and chew it properly. जो herbivorous animals होते हैं इन्हें हम cud chewing animals भी कहते हैं। ये सबसे पहले अपने खाने को ना पूरा निगल जाते हैं, उसके बाद ये इसे वापस दोबारा अपने माउथ में लाते हैं और धीरे धीरे इनको चबा चबा के खाते हैं, जैसे काऊ, बफालोस को आप देखते हो। The undigested food that is brought back to the mouth is called cud. हम इन्हें cud chewing animal क्यों कहते हैं, क्योंकि जो खाना वो पूरा का पूरा निगल जाते हैं तो कुछ खाना उसमें से तो डाइजेस्ट हो जाता है, जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो वापस उनको अपने माउथ में लाते हैं और फिर उनको च्यू करके खाते हैं, इसी को कहा जाता है cud। अब देखो, स्नेक्स swallow prey much bigger than their mouth and slowly digested। जो हमारे स्नेक्स होते हैं उनमें एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी होती है। हमारे जो स्नेक्स होते हैं ना, अगर इनका साइज इतना छोटा सा है तो वो इतने बड़े एनिमल को खा सकते हैं, ठीक है, यस, वो अपने से दुगने साइज के एनिमल को भी खा सकते हैं और धीरे धीरे उनको डाइजेस्ट करते हैं। The tongue of frogs and lizards help them to catch insects, which is then swallowed whole. Then it is digested swallows. Then it is digested slowly. जो फ्रॉग और लिजार्ड्स के जो टंग होते हैं ना, ये अपने टंग को बाहर निकालते हैं और अपने खाने को कैच कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उनको डाइजेस्ट करके खाते हैं। बर्ड्स यूज देयर बिक्स फॉर ईटिंग फूड। बर्ड्स अपने बिक्स का यूज करते हैं खाना खाने के लिए। They have different types of beaks for different purposes, ठीक है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में अपने पढ़ा है बर्ड्स के डिफरेंट बिक्स होते हैं, ठीक है, तो वो उससे वो क्या करते हैं, अपना खाना खाते हैं। Then mosquitoes have a sharp needle-like structure to suck blood from animals and human beings. अब मॉस्किटोज क्या खाते हैं, मॉस्किटोज खाते नहीं है, मॉस्किटोज पीते हैं, वो ब्लड पीते हैं, ब्लड उनका खाना होता है, ठीक है, तो उनका जो माउथ होता है ना, उनके पास एक बहुत ही शार्प निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको हम ह्यूमंस के स्किन में या फिर एनिमल्स के स्किन में उसको पॉक करते हैं और उससे वो ब्लड को सक कर लेते हैं, ठीक है। The butterfly has a slender hollow tube called proboscis. It helps to suck nectar from the flowers just like a straw. Butterfly के पास एक ट्यूब होता है, एक hollow ट्यूब होता है जिसको हम proboscis कहते हैं, ठीक है, इससे वो क्या करते हैं, फ्लावर्स के नेक्टर को यानी फ्लावर्स के अंदर मौजूद जूस को वो सक कर लेते हैं। जैसे हम स्ट्रॉ से कोई ड्रिंक लेते हैं ना, ऐसा लगता है कि वो ड्रिंक पी रहे हैं स्ट्रॉ की हेल्प से, ठीक है। Now we are going to see the another category of animals are called as mammals, ठीक है। अब ये देखिए, the animal kingdom includes animals like dogs, cats, cows, horses and elephants. Animal kingdom में बहुत सारे animals होते हैं, जैसे dog है, cats है, cows है, horse है और elephants है। These are known as mammals. इनको हम mammals कहते हैं। But mammals होता क्या है? What is the meaning of mammals? Let's see. Mammals are animals that feed their babies on milk from their bodies.
सॉरी, मैमल्स वो एनिमल्स की कैटेगरी होती है, या सॉरी नॉट एनिमल्स, मैमल्स वो लिविंग बीइंग की कैटेगरी होती है जो अपने बेबी को फीड करा सकते हैं, मतलब अपनी बेबी को वो अपना खुद का मिल्क पिला सकते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने बेबी को खुद का अपना मिल्क पिलाते हैं उन्हें हम कहते हैं मैमल्स, ठीक है। दे गिव बर्थ टू यंग वंस दैट रिजेंबल देयर पेरेंट्स, ठीक है, वो बच्चे भी पैदा करते हैं, ठीक है। मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड, सम मैमल्स लाइक द ब्लू व्हेल एंड द डॉल्फिन लिव इन वाटर। तो जितने भी एनिमल्स हैं जो मैमल की कैटेगरी में आते हैं उसमें से मोर देन हाफ लैंड में रहते हैं, यानी जमीन पर रहते हैं, और कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो वेल या डॉल्फिन है वो पानी में रहती हैं, ठीक है। नाउ कीप इन माइंड ह्यूमन बीइंग आर आल्सो मैमल, ह्यूमन बींग्स में मैमल्स है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ह्यूमन बींग्स में क्या जो फीमेल होती हैं वो अपने बेबी को फीड कराती हैं, ठीक है, और इसीलिए हम ह्यूमंस भी किस कैटेगरी में आते हैं? मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मैमल्स का मतलब क्या होता है? मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को पैदा करते हैं और फीड कराते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है मैमल्स। Why do animals move? अब एनिमल्स मूव क्यों करते हैं? दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे मूव मेनली। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, पर क्यों? देख लेते हैं। इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, तो सबसे पहली चीज है जिसके लिए एनिमल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो है फूड और वाटर सप्लाई के लिए। टू लुक फॉर शेल्टर्स, कभी कभी घर ढूंढने के लिए भी वो रहते हैं। घर ढूंढने का मतलब क्या है? देखो, आप सब लोगों को पता है माय डियर स्टूडेंट्स, हम ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं डेली, बहुत सारे लार्ज स्केल पे क्या कर रहे हैं? जंगल काट रहे हैं। तो जब आप जंगल को कट करोगे तो एनिमल्स कहाँ जाएंगे? क्योंकि जंगल इज द होम ऑफ दोस एनिमल्स। तो वो क्या करते हैं? वो उस जगह को छोड़ के कहीं और जाते हैं रहने के लिए, ठीक है। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, कभी कभी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को एनिमल्स से प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सो बेसिकली ये 3 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एनिमल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। Now we are going to see the another category of animals that is called as reptiles. Now what is the meaning of reptiles? Let's see. Reptiles move quietly, keeping their whole body close to the ground. Reptiles वो कैटेगरी होती है एनिमल्स की जो अपने बॉडी का पूरा वजन जमीन पे रख के बहुत बिना कोई शोर किए, बिना कोई साउंड निकाले मूव करते हैं, तो उन्हें हम रेप्टाइल्स कहते हैं। द स्किन ऑफ दिस एनिमल्स इज कवर्ड विद स्केल्स, और रेप्टाइल्स की जो स्किन होती है ना इसमें स्केल्स बने होते हैं, ठीक है। स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड लीजर्ड्स आर रेप्टाइल्स। तो सबसे मेन एग्जांपल कौन कौन से है रेप्टाइल्स के? स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल्स और लीजर्ड्स हैं। इनकी बॉडी पे ना वो स्केल्स बने होते हैं, ठीक है। स्नेक्स हैव फ्लेक्सिबल बॉडीज विदाउट एक्सटर्नल ईयर्स, ठीक है। स्नेक्स के पास ईयर नहीं होते हैं, इनके पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं। द आईज ऑफ स्नेक्स ऑलवेज रिमेन ओपन, जो स्नेक्स की आईज होती है ना ऑल टाइम खुली हुई रहती हैं। Many snakes do not eat for several weeks or months. बहुत से ऐसे स्नेक्स होते हैं जो कई कई हफ्तों तक या आप कह सकते हो कई महीनों तक ये कुछ नहीं खाते हैं, ठीक है। कीप इन माइंड, तो क्या आपको माइंड में रखना है? चलिए देख लेते हैं। क्रोकोडाइल इज द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रॉलर ऑन द अर्थ। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा बड़ा क्रॉलर कौन है? वो है क्रोकोडाइल। क्रॉलर का मतलब क्या होता है? जो क्रॉल करके चल सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉल करके जितने भी एनिमल्स चलते हैं उनमें सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके क्रोकोडाइल्स होते हैं, ठीक है। टॉर्टोइज इज अ स्लो मूविंग क्रॉलर एंड इट लिव अप टू 150 ईयर्स। और टॉर्टोइज दूसरी तरफ सबसे ज्यादा स्लो चलने वाले क्रॉलर्स की कैटेगरी के एनिमल्स हैं और ये ऑलमोस्ट 150 ईयर्स तक जीते हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, हियर यू कैन सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ स्नेक, दिस इज द पिक्चर ऑफ लीजर्ड एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ क्रोकोडाइल, ठीक है। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट कैटेगरी व्हिच इज बेस्ड ऑन इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स क्या है देख लेते हैं। Insects are tiny living organisms. They can be found creeping about both in our homes as well as outside. Insects सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये आपको आपके घर में भी मिल जाएंगे या फिर घर के बाहर भी मिल जाएंगे, ये हर जगह मिलते हैं। They have 6 legs. इंसेक्ट्स के मिनिमम 6 लेग होते हैं, ठीक है। Insects are the smallest creeping crawlies and numerous in our एनवायरमेंट। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सबसे छोटे क्रॉल करने वाले भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में, या सबसे छोटे हैं। हाउस फ्लाई इज द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट। तो सबसे कॉमन इंसेक्ट क्या है जो हमारे घरों में मिलता है? हाउस फ्लाई यानी मक्खी। We usually treat insects such as mosquitoes, cockroaches, bees and flies as pests, ठीक है। तो बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जैसे कि आपका मॉस्किटो है, मच्छर, कॉकरोच, ठीक है,
बीज और फ्लाइज, इनको हम लोग क्या, इनको हम अपने घर में नहीं रहने देना चाहते हैं, इनको हम घर से निकालते हैं, ठीक है। बट बटरफ्लाइज एंड बीज आर वेरी यूजफुल एज दे हेल्प प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस। लेकिन इन इंसेक्ट्स में बटरफ्लाई और हनी बीज जो होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंसेक्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। नाउ कीप इन माइंड माय डियर स्टूडेंट, व्हाट पॉइंट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, लेट्स सी। सम इंसेक्ट्स आर फूड फॉर बर्ड्स। बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो बर्ड्स के लिए खाना का काम करती हैं। बहुत से बर्ड्स इन छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स को जो पढ़ते हैं, इंसेक्ट्स की जो पढ़ाई की जाती है, उसे कहा जाता है एंटोमोलॉजी। जैसे आप लोग मैथ्स के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जो जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते हो, उसे मैथमेटिक्स कहा जाता है ना। जिसमें आप लोग ड्रॉ करते हो, पिक्चर्स बनाते हो, उस सब्जेक्ट को ड्राइंग कहा जाता है। वैसे ही माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं तो उसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी, ठीक है। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द समरी ऑफ योर चैप्टर. Okay, so animals are of different shapes and sizes. Yes, my dear student, this is absolutely true point. In our planet Earth, many animals are present and all have different shapes and all have different sizes. Mammals are animals that feed their babies on milk from their body. Mammals are those category of living organism who can feed their own milk to their to their babies. The best example of mammals is we human beings. Reptiles move quietly, keeping their whole body close to the ground. Reptiles क्या होते हैं? Reptiles are those living organisms having a scale on their body and they put their whole weight of body on the ground and they can move very quietly. Ants are small insects and also called social insects. Okay, so ants are the smallest insect. Okay, and they are also called as our social insects. Now we are going to see the fact corner. Okay, so what is written in fact corner? Let's see. The rhinoceros beetles are the strongest animal in the world. जो rhinoceros beetle है वो सबसे ज्यादा strongest animal है इस पूरे world में, ठीक है। They are capable of lifting 850 times their own weight. ये कितने स्ट्रॉन्ग है आप देख सकते हो। अगर इनके बॉडी का वेट 1 kg, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर इनके बॉडी का वेट अगर 1 kg है तो ये अपनी बॉडी से 150 टाइम्स ज्यादा वेट कैरी कर सकते हैं। इसीलिए जो राइनोसोरस बिटल्स होते हैं इन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल कहा जाता है। पूरे दुनिया में इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। Even ants, which are famous for their strength, can lift only 50 times their weight. ठीक है, ants, हम लोग कहते हैं ना कि आंट्स हमेशा अपनी बॉडी से ज्यादा वेट लेके चलते हैं, उनसे भी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर एनिमल किंगडम. नाउ कम विद मी एंड लेट्स कंप्लीट अवर एक्सरसाइज. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप द concept of OMR sheet is clear to you all. It is a pink color sheet in which you can see total 4 options. Okay, and you have to choose your correct option in the form of these circles. Okay, and you have to fill this circle with the whole. Okay, तो आपको इस पूरे सर्कल में क्या करना है, पूरा का पूरा कलर करना है. अगर आप उस पर क्रॉस करते हो, टिक करते हो या हाफ कलर करते हो या फिर छोड़ देते हो तो गलत तरीका है OMR शीट में आंसर देने का. ठीक है, नाउ कम विद मी एंड लेट्स टिक द करेक्ट ऑप्शन. सो आवर फर्स्ट इज animals that live in water are called land animals, wild animals और aquatic animals. जो animals पानी में रहते हैं उन्हें हम aquatic animals कहते हैं. Most animals live on, बहुत से animals कहाँ रहते हैं, land, water या air, land पे रहते हैं. Snakes have flexible bodies without external. स्नेक्स की फ्लेक्सिबल बॉडी होती है लेकिन उनके पास क्या नहीं होता है, ईयर्स नहीं होते हैं. ठीक है, स्नेक्स के पास ईयर्स नहीं होते हैं. नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स. अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं. डैश एंड डैश आर वेरी लार्ज. ठीक है, कौन सबसे बड़ा है, सबसे बड़े ऑर्गेनिजम्स कौन है, अच्छा देख लेते हैं. ये रहा व्हेल्स एंड एलिफेंट्स. ओके, सो व्हेल्स एंड एलिफेंट्स. अच्छा, जब आप व्हेल्स लिखोगे ना तो उसमें से ब्लू व्हेल आप नहीं लिखोगे. ठीक है, क्योंकि व्हेल्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो आप यहाँ पे लिखने वाले हो व्हेल्स एंड एलिफेंट्स. ओके, नाउ द सेकंड वन, डैश एनिमल्स हंट फॉर देयर फूड. कौन हंट करते हैं अपने फूड के लिए, वाइल्ड एनिमल्स या फिर कार्निवोरस, यही हंट करते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स. ठीक है, ठीक है, कार्निवोरस एनिमल्स हंट फॉर देयर फूड. डैश
डैश एंड डैश आर रेप्टाइल्स। कौन कौन रेप्टाइल्स होते हैं? ये है ना रेप्टाइल्स आपके, देखिए स्नेक्स, लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल, ये रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। स्नेक्स, snakes, lizard and crocodile. Okay, crocodile are reptiles. Dash is the study of insects. Study of insects को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ये देखो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। ठीक है, चलो ट्रू फॉल्स करना है। राइट, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज people, plants and animals are living things. True or false? Absolutely true. We all are human beings. Okay, we all are living beings. So true. True. Second one, plants that live on trees are called amphibians. जो trees के ऊपर रहते हैं उन्हें amphibians कहते हैं? नहीं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एरोब्यूल्स कहते हैं ना। देखो ये कैटेगरी थी, ये है ना, देखो एनिमल्स डेट लीव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल। ठीक है, तो ये फॉल्स है आपका। फॉल्स। ठीक है, द बटरफ्लाई हैज अ स्लेंडर हॉलो ट्यूब कॉल्ड प्रोबोसिस। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। फिर आता है मैमल्स लाइक व्हेल एंड डॉल्फिन लिव इन वाटर। एब्सोल्युटली ट्रू। लास्ट है insects have 8 legs. False. Insects have total 6 legs. False. ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन एंड आंसर्स टाइम। चलो देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू एनिमल्स नीड इन ऑर्डर टू लिव? एनिमल्स को क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? देखो यहां पे इसका आंसर है। ओके, दे नीड, एनिमल्स नीड फॉर देयर लिविंग, फॉर देयर ओन लिविंग, दे नीड, ओके, सो एनिमल्स नीड फूड, वाटर एंड एयर टू लीव। तो ये आपका पहला आंसर है। सो पहला आंसर क्या है? एनिमल्स नीड फूड, वाटर एंड एयर टू लीव। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? हु आर एम्फीबियंस? एम्फीबियंस कौन होते हैं देख लेते हैं। एम्फीबियंस ये रहे, द एनिमल्स दैट कैन लिव इन बोथ वाटर एज वेल एज ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस। एग्जाम्पल क्या है एम्फीबियंस के? क्रोकोडाइल है, टॉर्टोइज है। ठीक है, तो आप ये आंसर देंगे और साथ ही एग्जाम्पल भी देंगे। फिर है आपका Why are herbivorous animals called cud chewing animal? Herbivorous animals को हम cud chewing animal क्यों कहते हैं? देख लो, ये रहा इसका। अच्छा, उन्हें cud chewing animal क्यों कहा जाता है? क्योंकि while feeding they quickly swallow their food. खाना वो खाते हैं तो जल्दी जल्दी वो खाते हैं और पूरा खाना अपना निगल जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आपका ये है, while feeding they quickly swallow their food, okay, but some food remain undigested, so उसके बाद वो क्या करते हैं? So they bring back their food into their mouth and chew it properly. ये है आपका आंसर। तो इसका आंसर ये होगा माय डियर स्टूडेंट्स, herbivores are known as cud chewing animals because they quickly swallow their whole food, okay, and some of them remain undigested. Later on they bring their undigested food in their mouth and chew them properly. ठीक है, ये आपका आंसर है। फिर क्या है देखते हैं। What are mammals? Give two examples. Mammals क्या होते हैं? दो एग्जाम्पल्स आपको mammals के देने हैं। तो ये रहा mammals का आंसर। देखिए, mammals are those living organisms, आप ऐसे लिखेंगे, mammals are those living organisms who feed their babies on milk from their body. ठीक है, तो मैमल्स क्या होते हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने बच्चों को अपनी बॉडी का मिल्क पिलाते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स आपको देना है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल वी ह्यूमन बींग्स हैं, उसके अलावा व्हेल है। ठीक है, ओके, तो ये आपके दो एग्जांपल हो गए। फिर क्या है आपका है, व्हाई डू एनिमल्स मूव? एनिमल्स क्यों मूव करते हैं? सो दिस इज योर आंसर। एनिमल्स मूव, ओके, एनिमल्स मूव बिकॉज ए, इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, बी, टू लुक फॉर शेल्टर,
C to protect themselves from enemies. ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर्स भी फिनिश हो गए. नाउ लेट्स सी एक्टिविटी टाइम. हियर A, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड मेक अ ब्यूटीफुल एल्बम. ठीक है, आपको एक बहुत ही प्यारा सा एल्बम क्रिएट करना है जिसमें आपको बहुत डिफरेंट एनिमल्स के पिक्चर और बर्ड्स के पिक्चर्स को कलेक्ट करना है, उसमें पेस्ट करना है. ठीक है. बी, आपको क्या करना है, मेक एनिमल्स मास्क यूजिंग पेपर प्लेट्स. यू नीड कलर्ड पेपर, ओल, glue and scissor. Cut out parts of the face of an animal, stick them on the back of the plate, your mask is ready. आपको एक पेपर मास्क बनाना है एनिमल का. आप पेपर प्लेट की हेल्प से बनाएंगे. ठीक है, आप किसी भी एनिमल का जिसका भी मास्क बनाना चाहते हो उसका पिक्चर आप क्या कीजिए, उसके पिक्चर का एक कटआउट बना लीजिए, उसको इस पेपर प्लेट पे स्टिक कर दीजिए. आपको इसमें पेपर, ओल, ग्लू और सीजर चाहिए. इनकी हेल्प से आप मास्क बनाएंगे. ठीक है. Okay, my dear student, in this way we also have completed our chapter number 3. Now, my dear students, you have to go thoroughly through this chapter and complete all the leftover exercise. Okay. Now, my dear students, I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you have to take very good care of yourself. Bye.